Good morning, class 10th. Welcome back once again in our online classes. Today we are going to start the second video of the chapter number 3, that is a light. Light में बेटा हमारे दो parts हैं. The first one is a reflection and second one is the reflection. In the previous class we have started the chapter reflection and we have started the video with the introduction of the chapter reflection. We have studied there what is the reflection. हमने वहाँ पे पढ़ा कि reflection क्या होता है और कैसे ये प्रोड्यूस होता है. उसमें हमारी तीन रेस को हमने तीन लाइंस के बारे में पढ़ा. द फर्स्ट वन इज़ द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे. फिर उसके बाद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. हाउ मैनी लॉ वॉज देयर वॉज टू टाइप्स ऑफ अ लॉ. द फर्स्ट वन इज़ द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. All three lie on a same point. This was the first law. What was the second law? Incident angle is equal to the reflected angle. That was the two law in the case of the reflection. Then in the last class we have studied about the plane mirror. What is a plane mirror and how the image is formed in a plane mirror. Now then we have gone through with the introduction of the spherical mirror. We have two types of a spherical mirror. The first one is a concave and second one is a convex. Today, starting with the same concept of the types of a mirror, we will learn here about the spherical mirror, image formation, ray diagram and use of the convex and concave mirror. So without wasting the time, let me start the chapter, let me start the topic and let me start the video of the day. Okay. Student, in the last class we have learned about the mirror. There was two types of a spherical mirror. The first one is a convex and second one is a concave. You should know about that. What is a concave mirror? The concave mirror is this type. We have a like this, a concave mirror. This is a concave mirror where outside of the portion is colored here. So we can say this mirror is also called the converging mirror. We can say concave or converging mirror, spherical mirror. Why it is called the converging spherical mirror? Because all the light ray, when it passes through the parallel to the principal axis, it get converged to one point. जितनी भी लाइन हमारी पैरेलल एक्सिस से पास होती हैं सारी इकट्ठा होकर के एक पॉइंट से जाती हैं. दैट इज कॉल्ड द फोकस. When we learn about the image formation, when we learn about the ray diagram, then we will get and go through these all concepts कि कैसे रेज हमारी कन्वर्ज होती हैं और कैसे रेज हमारी डाइवर्ज होती हैं. सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्केव मिरर. सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं. व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अ प्रिंसिपल ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज ड्यूरिंग द रे डायग्राम. फर्स्ट वी लर्न अबाउट दैट कि क्या क्या रे डायग्राम जब हमारे पैरेलल एक्सिस से पास होती हैं तो कहाँ से होंगी, जब फोकस से पास होंगी तो किधर से रिफ्लेक्ट बैक जाएंगे. फर्स्ट वी लर्न अबाउट दीस ऑल थिंग्स. सो स्टार्टिंग द चैप्टर, स्टार्टिंग द टॉपिक, लेट वी सी द कॉन्केव मिरर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर. द फर्स्ट कंडीशन इज हियर फॉर द इमेज फॉर्मेशन इज व्हेन अ लाइट रे इज इनकमिंग पैरेलल टू द एक्सिस. हमारा लाइट रे एक्सिस के पैरेलल आता है. दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis. This is called the principal axis, the main axis in which we kept the object and we will form the image there. That is called the principal axis. If a light ray is incoming from the parallel to the principal axis, it will pass from the point that is called the focus. ये हमारे पॉइंट से पास होता है, इसको हम फोकस कहते हैं. ये पहला कंडीशन है. When light ray comes parallel to axis. When a light ray comes parallel to the axis, it will always pass from the focus. Either it is a concave mirror or in case of the convex mirror. If we talk about the convex mirror, it is like this. This is a case of a convex mirror. Okay. This is the principal axis. It is passing from the focus, sorry, it is passing from the pole. This is called the pole here. The intersecting point of a principal axis and the mirror is called the pole. When a light ray passes from the parallel to the axis, when light ray passing from parallel to the axis,
इट कन्वर्ट डाइवर्ज बैक, ये डाइवर्ज हो जाती है, बाहर चली जाती है, बिकॉज ऑफ दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर. सो ध्यान देना बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग और अ कॉन्वेक्स मिरर. तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग वर्ड का ध्यान रखना, क्योंकि ये अक्सर पूछता है बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम्स में कॉन्केव या कॉन्वेक्स ना देकर के वो डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग दे देगा. ऑल्सो इन द केस ऑफ द न्यूमेरिकल, इट पासेस अवे फ्रॉम द एक्सेस व्हेन वी बेंड बैक लाइक दिस, इसको पीछे करते हैं. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस. दिस इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द मिरर. ये हमारा पॉइंट फोकस ऑफ द मिरर है. इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इफ वी कंप्लीट दिस, अच्छा इसको ऐसे ही करते हैं कि व्हेन अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम पैरेलल टू द एक्सिस इट बेंड्स बैक टू एंड पासिंग फ्रॉम द फोकस. ये बेंड बैक होकर के जिधर से पास होती है दैट इज कॉल्ड द फोकस. वन मोर कॉन्सेप्ट इज देयर, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो व्हेन वी सर्कुलेट दिस होल सर्कल, इसको हम जब पूरा करते हैं लाइक दिस, इसको पूरा करें या फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं, इसको जब हम कंप्लीट सर्कल बनाते हैं लाइक दिस, वी विल गेट द सेंटर एंड दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेडियस ऑफ, ये हमारा किसका रेडियस है? इस सेंटर के, इस स्फेरिकल सेल का रेडियस है. सो दिस इज कॉल्ड द रेडियस एंड दिस इज कॉल्ड द फोकस. And this one is the center of curvature. Same in this case, this is called the center of curvature and this is called the radius. Okay, is that clear to everyone? Now what is the relation between f? This is called the focus, so we will represent by that. The distance is the small f. Here it will be the same, the distance is the small f. So if we talk about the f and r, if we talk about the relation between the f and r, then what will be here? Radius is a twice of focal length. Should always remember that. इसको भी हम आगे प्रूव भी करेंगे, इसको हम प्रूव करके निकालेंगे. अभी सिर्फ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ. ये हरदम फोकल लेंथ के ट्वाइस होता है. ओके, नाउ सो वी हैव टॉक अबाउट द फोकस एंड वी हैव टॉक अबाउट द इमेज फॉर्मेशन. व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू द एक्सिस इट ऑलवेज passes from the focus. Okay, now we will talk about the second condition. What will be the second condition here? In the case of the second condition, when a light ray is passing from the focus, when a light ray is passing from the focus, okay, now the case, this is the second case. And the second case is here, this we have a pole, here we have a focus and here we have a center of curvature. In the case of the converging mirror, what will happen here? When a light ray passes from the focus, now see the ray diagram, what you will get here. When a light ray passes from the focus, if a light ray is passing from the focus, it will bend in a parallel to the axis. ये किधर मूव कर जाएगा? इट विल गो बैक इन अ पैरेलल टू द एक्सिस. जब लाइट रे हमारी फोकस से पास होता है तो वो बेंड होकर के किधर से पास होता है? पैरेलल टू द एक्सिस. नाउ इन अ सेकेंड केस, इन द केस ऑफ द डाइवर्जिंग मिरर, दिस इज अ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस वन इज अ पोल. इफ अ लाइट रे इज कमिंग इन अ डायरेक्शन टू द फोकस, अगर लाइट रे एक फोकस के डायरेक्शन में आ रहा है, इधर से बाहर से आ रहा है, इट विल रिटर्न बैक इन अ पैरेलल कंडीशन. तो ये किधर से पास होगा? पैरेलल टू द एक्सिस. ये हमारा सेकंड केस हो गया. पहला केस हमने क्या पढ़ा था? व्हेन लाइट रे पासेस पैरेलल टू द एक्सिस इट विल पास फ्रॉम द फोकस, वो फोकस से पास होता है. और सेकंड केस हमने क्या पढ़ा? उसका जस्ट ऑपोजिट, और वी कैन से द इनवर्स ऑफ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. If a light ray is incoming to the focus, it will bounce back parallel to the axis. जब फोकस पे इनकमिंग कर रही है तो वो बाउंस बैक हो जाएगा. किधर बाउंस बैक होगा? पैरेलल टू द एक्सिस. दिस इज द सेकेंड केस. केस 3,
In third case, when light ray comes to the center, अगर एक लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उस केस में हमारा क्या होगा, ये हमारा मिरर बन गया, स्फेरिकल मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सेस। ये सेकेंड केस है डाइवर्जिंग लेंस, इसमें ये इनसाइड हमने कलर कर दिया, डाइवर्जिंग में इनसाइड कलर होता है, यू नो वेरी वेल। अगेन दिस इज अ पोल, दिस इज अ फोकस एंड हियर वी हैव द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसने बोला इफ अ लाइट रे इज इनकमिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आ रही है ये ऐसे, व्हाट विल हैपन, इट विल गो बैक ऑन द सेम पाथ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो किधर जाएगी, उस सेम पाथ में वापस आ जाएगी। सेम इन द केस ऑफ हियर, दिस इज द पोल, फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन इन द सेम केस, इफ अ लाइट रे इज इनकमिंग इन अ पाथ टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रही है तो इट विल रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ, ये हमारा सेम पाथ पर वापस चली जाती है। सो दिस वॉज द थर्ड कंडीशन। पहला कंडीशन पैरेलल टू द एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम द फोकस, सेकेंड कंडीशन इनवर्स ऑफ दैट, इफ इट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस इट विल गो पैरेलल टू द एक्सिस, एंड थर्ड वन इज द केस व्हेन अ लाइट रे इनकम्स फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आती है तो सेम पाथ पर वापस आ जाती है। अब इसका एक लास्ट केस और बचा हुआ है, लास्ट केस इज व्हेन अ लाइट रे passes from the pole, if a light ray is passing from the pole then what will happen here, अगर एक लाइट रे हमारी पोल से पास होती है तो क्या होगा, पोल हमारा क्या होता है, द फ्रॉम पोल हमारा क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द स्फेरिकल मिरर टू द एक्सिस। स्फेरिकल मिरर और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द पोल। इफ अ लाइट रे इज इनकमिंग टू द पोल, अगर लाइट रे पोल पर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल, सो इट विल गो बैक ऑन द सेम रिफ्लेक्टेड एंगल, वो सेम रिफ्लेक्टेड एंगल के ऑपोजिट पार्ट से हमारा पास हो जाएगा। सेकेंड केस हियर, if it is coming to the pole it will go back on the same opposite part like this, this is the incident angle and this is the reflected, both angle will be same from the law of reflection, you know very well both angles are always same. So this was the four part, this was the four condition for the formation of the ray diagram. रे डायग्राम, रे अगर आती है हमारे किसी पाथ पे तो कौन से पाथ को फॉलो करके जाती है, ये चार पाथ होते हैं, चार पाथ को हम फॉर्मेशन का यूज़ करके हम रे डायग्राम का आगे इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हियर अबाउट द इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉनकेव मिरर। हमारा अगर कॉनकेव मिरर है तो उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, यू कैन सी हियर वी हैव ड्रॉन द 6 टाइप ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। ये 6 तरीके होते हैं इमेज का फॉर्मेशन का कि कॉनकेव मिरर में अगर 2 रेज पास हो रही हैं तो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। वी हैव अ 6 कंडीशन ऑन दैट। हमें उन कंडीशंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से उसको लर्न करना है, बना बना के उसको प्रैक्टिस करना है। रे डायग्राम हमें पता रहेगा तभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। द फर्स्ट कंडीशन इज हियर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट। जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे हो, बहुत दूर हो, तो कैसा इमेज हमें बनेगा और कहाँ पर बनेगा। यू कैन सी हियर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट, इन्फानाइट कंडीशन मीन्स वी कैन से इट इज़ एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है, इन्फानाइट पे है। अ लाइट रे इज कमिंग पैरेलल, इट विल पास फ्रॉम द फोकस। एक लाइट रे हमारी पैरेलल आ रही है, फोकस से पास होगी। Another light ray is coming parallel and it will again pass from the focus. It means when an object is at infinite, which type of image is formed? The image is formed will be at the focus. हमारा image का जो formation होगा वो focus पे होगा। What is the property? Image is at the focus. जो भी हमारा image form होगा वो focus पे form होगा। Second, the image will be the point image. बहुत ही छोटा image बनेगा, छोटा और point image बनेगा। Second condition, you should learn that. Third is the real and inverted.
जिस जो भी हमारा इमेज बनेगा वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड नेचर का बनेगा। एंड लास्ट वन इज द टू कलेक्ट द रेडिएशन ऑफ द सोलर डिवाइस। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है सोलर डिवाइस में रेडिएशंस को कलेक्ट करना। यू हैव सो द सोलर डिवाइस, सोलर पैनल्स आपने देखा होगा, हमारी रेज होती है वो इन्फानाइट से आती है, यानी सन रेज होती है हमारी इन्फानाइट से आती हैं और आकर के एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। वो इमेज का फॉर्मेशन हमारा ये है, पहला केस है। व्हेन अ रे इज एट इन्फानाइट एंड द इमेज विल फॉर्म्ड एट द फोकस, हमारा इमेज सारा एक फोकस एक पॉइंट पे बनेगा, इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट विल बी यूज्ड इन अ सोलर डिवाइस। नाउ वी हैव द सेकेंड केस, when a object is between the infinite and center of curvature। सेकेंड केस हमारा है when object is at infinite and center of curvature। this we suppose this one is the infinite and this is the center of curvature, the object is here, this is the object। now we will see where the image will form here। a light ray passing from the parallel to the axis will pass from the focus, you know very well। एक लाइट रे अगर एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से पास होती है। द अनदर रे पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ, जिस पाथ से आती है उसी पाथ में रिटर्न बैक हो जाती है। यू विल सॉ दैट वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड इज हियर। जो इमेज हमारा बनता है वो यहाँ भी बन रहा है, दिस इज द इमेज। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द इमेज? द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा। यू कैन सी हियर रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, मीन्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हमारे ऑब्जेक्ट की साइज जितनी है उससे देखो यहाँ पे छोटा बन रहा है इमेज। इमेज का साइज हमारा क्या है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, रियल मीन्स रियलिटी का नेचर है, एंड डिमिनिश्ड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेकेंड केस है। नाउ यू कैन सी हियर दिस वन इज द थर्ड केस, when the object is at C, when object is at center of curvature, यहाँ पर object है, a light ray is parallel to the axis passing from the focus, you can see like this, light ray parallel to the axis आ रही है, focus से पास हो रही। another light ray in coming to the focus always passes parallel to the axis। जो light ray focus पर जा रही है वो किधर पास होगी? parallel to the axis। और जो light ray parallel to the axis आ रही है it will pass from the focus। ये होता है। You can see here the image is formed will be at the center of curvature। ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज एट सी। इमेज जो भी फॉर्म हो रहा है हमारा एट सी पर बन रहा है। यू कैन सी हियर व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज? इट इज अ रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द इन्वर्टेड फॉर्म, उल्टा बन रहा है हमारा। इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट का वही साइज है इमेज का, सेम साइज का बन रहा है और रियल इमेज बन रहा है, कि हमारा रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। नाउ इट इज़ यूज्ड इन अ रिफ्लेक्टिंग मिरर फॉर द प्रोटेक्टर लैम्प। इसका जो यूज़ है वो रिफ्लेक्टिंग मिरर में यूज़ होता है और प्रोटेक्टर लैम्प के लिए यूज़ होता है। ये था हमारा थर्ड केस। फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे बनता है। यू कैन सी द ऑब्जेक्ट इज हियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है। अ लाइट रे इनकमिंग फ्रॉम पैरेलल टू द एक्सिस विल पास फ्रॉम द फोकस। ये बार बार वही एक कंडीशन आ रही है। ये सेकेंड केस, व्हेन अ लाइट, नाउ सेकेंड केस, अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यू कैन सी लाइक दिस। हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं बिकॉज वी नीड टू पास द लाइट रे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे। यू कैन सी अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस, इट विल रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ। ये सेम पाथ पे वापस आ जाता है। यू कैन सी यू विल फाइंड द इमेज समवेयर लाइक दिस, ऐसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। इट विल बी हेयर, ये हमारा इमेज बनेगा। सो व्हाट इज द इमेज हेयर? इट विल फॉर्म बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, पहला कंडीशन। सेकेंड, इट विल बी द रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन द ऑब्जेक्ट। रियल है, इन्वर्टेड है, ये हर जगह हो रहा है रियल इन्वर्टेड। अब शेप जो होगा वो बिगर देन द ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे शेप क्या था? स्मॉलर डिफनेस था, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हुआ, यहाँ पे इक्वल हो गया और यहाँ पर बिगर देन द ऑब्जेक्ट हो गया। यू कैन सी हियर इट इज़ द बिगर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट केस, केस नंबर 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, when the object is at focus, you will see here where the image is formed, the light ray parallel to the axis passing from the focus of curvature,
and the light ray passing from the center of curvature like this, it will return back on the same path and the image will formed at infinite. जो इमेज बनेगा वो बहुत दूर जा कर के बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, इन्फानाइट पे बनेगा. सो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फानाइट एंड हाईली मैग्नीफाइड. ये बहुत ज़्यादा हाईली मैग्नीफाइड होते हैं. यू कैन राइट हियर हाईली मैग्नीफाइड, यानी बहुत बड़ा बनता है हमारा यहाँ पे इमेज, बहुत बड़ा बनता है. फिर से भाई रियल और इन्वर्टेड बनेगा. यू कैन नो देयर रियल और इन्वर्टेड बनेगा. और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ होता है टॉर्च लाइट में यूज़ होता है, या जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उनमें इसका यूज़ होता है. तो ये इमेज का फॉर्मेशन हमारा टॉर्च हेडलाइट में या गाड़ियों की हेडलाइट में यूज़ होता है. एंड द लास्ट वन इज हियर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, इट मीन्स बिटवीन पोल एंड फोकस. दिस वन इज हियर पोल एंड फोकस. यू कैन सी हियर नाउ अ लाइट रे we will make like this between pole and focus. A light ray incoming from the center of curvature, it will go back on the same path. जिस पाथ पे आ रही है उसी पाथ पे वापस जाएगी. You can make here like this. Now a light ray passing from the pole, it will go back like this. पोल से पास होने वाली सेम डायरेक्शन में निकल जाती है. If we make them back side, ये कहीं इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा. You can form the image here somewhere back side to the मिरर के बैक साइड में हम इसका इमेज का फॉर्मेशन करेंगे. इट विल बी लाइक दिस. नाउ व्हाट इज द कंडीशन इन दिस केस? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. वर्चुअल बनेगा, सब में रियल बनता था. इस केस में याद रखना 6 केस में वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सब में इन्वर्टेड बनता था. यहाँ पे क्या बनेगा? इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, एंड मैग्नीफाइड, बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट. इसका यूज़ कहाँ करते हैं? सेविंग मिरर में करते हैं हम लोग. जब सेविंग करते हैं मिरर, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं. या फिर डेंटल डॉक्टर जो होते हैं और डेंटिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं इस मिरर का. ओके, सो आज की क्लास में ये इतना था. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा. इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको बना लो. इसके कंडीशंस को लर्न करके रखना. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट स्पेसिफिक कंडीशन, व्हाट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ, वेयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसका एग्ज़ाम में बहुत यूज़ होता है, इसका यूज़ बहुत आता है. अब ड्रॉ करने के लिए नहीं देते, अब इसका यूज़ देते हैं क्वेश्चंस में. इसका न्यूमेरिकल में यूज़ देंगे. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ऑल 6 कंडीशंस हमारी आएंगी. ओके, सो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही. आप इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. आपका होमवर्क ये रहेगा कि सारे कंडीशंस का मैंने एक एक यूज़ बताया है एक्सेप्ट केस नंबर 2. हमें क्या करना है? केस नंबर 2 का एक कंडीशन बताना है, सबका एक एक कंडीशन बताना है कि सबका यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा. हर एक कंडीशन को ड्रॉ करना है. ड्रॉ करने के बाद उसके लिखना है कि उसका इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा. और जो मैंने यूज़ बताया है उसके अलावा एक एक और यूज़ आपको लिख करके होमवर्क में देना है. ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे. ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.